Bismillahir Rahmanir Rahim. So from today onwards, we are going to start learning about basics of writing, and the very first lecture that we are going to discuss is related to writing process. In the previous lecture, we have discussed writing a paragraph. That was basically an important element of academic writing, as we are going to write anything, and definitely when we are going to discuss anything, so ultimately if we are going to discuss a single idea, single item, then we are going to seek the help of paragraph writing. So when you understood paragraph writing techniques, ultimately number of more than one paragraph will make an essay. So for that, we are going to learn writing process, and we are going to learn strategies related to writing. So I would ask you to tell me about writing. That what is writing in your opinion? What do you think about writing? So can you share your ideas with me? Anji, anybody who wants to tell me about writing? Sir, can I? Yes, please. Sir, can I tell in Urdu? Yes, please carry on. सर राइटिंग इसे कहते हैं कि जो अपने यानी कि थॉट्स को पेपर पे उतारना, पेपर पे लिखना या अपनी थिंकिंग को राइट करना, राइटिंग कहलाता है. Okay, anyone else? Sir, Communication in text form. Communication, and it involves your thoughts, your language with symbols, and we can express through writing. And if a person can't speak or can't hear, but they can mostly write, so it is a form of communication that is not just very important, but also it has a uh, vast level of knowledge, as well as it is more convenient for people to express themselves, because there are many people who are not confident enough to speak, to talk, but we often hear people who write diaries for themselves, or are more friendly with books that they write or they read, they like to read. So that is why for me it is that thing. Okay, so let's talk about it. So I expect that after the completion of this lesson, you will be able to understand what is writing, and we'll be also able to understand about writing steps. We'll come to know about do's and don'ts in writing, and we'll have a practice on a writing process. So, inshallah, with these expectations, we'll be discussing a writing process, and I hope that after the end of this lesson, we'll be able to know what is writing and what are the steps and what are the do's and don'ts. So, the first thing that I'm going to tell you about writing is basically if we say that somebody wants to communicate his thoughts, then there are two mediums. So when you're going to communicate, basically in the form of verbal communication, whether you have to adopt uh, a voice or means sounds, or you have to adopt alphabets. So writing is basically the process. Means that this is a process during which you have to use symbols, letters of the alphabets, and punctuation and spaces to communicate thoughts and ideas in a readable form. Alright? मीन्स कि रीडेबल फॉर्म में आपने बातों को बताना है, कम्युनिकेट करना है कि कैसा प्रोसेस है. Means we are using symbols in terms of, like when we are going to write, we are using symbols are what kind of symbols? Remember that when this is a verbal communication, then symbols should be based on alphabet, punctuation and spaces. And when it is non-verbal communication, then we can use emojis and pictures and clip art and things like these. But as we are going to write, as we are going to talk about writing, so you need to know that in this process you have to use symbols, means letters of alphabet, punctuation and spaces.
And why we use? To communicate thoughts and ideas. Whatever is in our mind, we are going to communicate it. And it must be in a readable form. Readable form. Note it. This is very important. Readable form means that you should write in that way that the other person should read. इस तरह ना लिखें बंदे को समझ ही ना आए, आपकी हैंड राइटिंग ऐसी हो कि बंदे को पता ही ना लगे. So you have to be careful as you are going to communicate your thoughts and ideas, then they must be in readable form in terms of your handwriting, in terms of your sentence structure, in terms of your construction of ideas and thoughts. So there are 5 steps in a writing process. As you can see in the screen, when you start writing and start learning about writing, and in this lecture we'll be talking about that process, that at the very start when you're going to talk about writing, so ultimately you have to pass from pre-writing stage to planning and organizing, and then drafting, revising, editing, and final draft. So when we are going to write, so we are not going to write abruptly, but whatever you are going to write, you are not going to write abruptly. You have to pass this through these steps. So from pre-writing, planning and organizing, then drafting, then revising and editing, and at the end there will be a final draft. So let's talk about the first stage, that is pre-writing. Before writing anything, you have to do something that is pre-writing. Means it is the first stage, and at this stage you have to discover and explore your initial ideas about a subject. Means that you are not going to write anything. Basically you are going to discover ideas, explore ideas. You are given a topic. For example, if I'm going to give you an assignment to write a book review, so you will not start writing a book review abruptly. Rather you will consult the library, you will find the book, and after finding the book you will look at different patterns, different steps in writing book review, or you will look for different templates of book review, and after that you will get some ideas, and after that you will start writing anything. So this is pre-writing stage. And at that pre-writing stage you have to note down some points, some ideas on the paper. As I told you that if I'll give you a task to write on book review, so you will visit the library, you will find the book first, and then you will read book reviews available online. You will note down the points on the paper, you will brainstorm your thoughts and ideas, you will note down each and everything, and eventually it will make the way into your writing. ठीक है, यानी कि पहले आप क्या करेंगे, आप अपने आइडियाज़, अपनी थॉट्स को इकट्ठा करेंगे. क्या लिखूं भाई, इस पे क्या बात करूं. ठीक है, ऐसा ही नहीं है बस ठीक है जी आया और चला दिया, नहीं, बल्कि कुछ इकट्ठा करेंगे, कुछ थॉट्स, कुछ आइडियाज़ इकट्ठे करेंगे. ठीक है. So there are certain strategies related to pre-writing. I'm just going to highlight 2 major strategies. Basically you can say that these 2 can be the steps also. That first you have to brainstorm your ideas. ठीक है, जब भी आप whenever you start writing anything, if you're asked to write an essay, इस चीज़ को आप इस तरह भी लेके जा सकते हैं. You are given the task in exam to give the answer of a question. So what you have to do, you have to answer it. So you straight away brainstorm the ideas and write it down on the paper. ठीक है, आप उसी तरह पेपर में जाके लिख के आ जाते हैं. ब्रेनस्टॉर्म जो आपके जहन में, मीन्स आपके जहन में जो आइडियाज़ का एक तूफ़ान पैदा होता है, उस तूफ़ान को आप उधर लिख के आप आ जाते हैं. ठीक है. सो उसका होता क्या है, फिर पढ़ने वाले को इस चीज़ की समझ ही नहीं आती कि आप क्या कह रहे हैं. मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बात की थी कि प्लीज़ mind it that you are writing for the reader. You are not writing for sake of writing, rather you are writing for the reader. ठीक है. आप ब्रेनस्टॉर्म करें अपने आइडियाज़ को, सोचें मैंने क्या लिखना है. उस सोच के दौरान ड्यूरिंग दैट ब्रेनस्टॉर्मिंग you can adopt these 2 strategies. Either you will list your ideas or you will cluster your ideas. ठीक है, आप लिस्ट बनाएंगे कि क्या ये चीज़ लिखनी है, ये नहीं लिखनी. अच्छा, लिस्टिंग होती है. हाउ इट कैन बी लिस्टिंग, फॉर एग्जाम्पल that
Okay, we'll be looking at it in the next slides. कि brainstorm किया, आपके दिमाग में आइडियाज़ का तूफ़ान आया, तूफ़ान आपने कंट्रोल किया, आइडियाज़ अपने लिखे, लिखने के दो तरीके आपने अडॉप्ट किए, either you have adopted listing or clustering, and after that you have made an outline. एक आपने फॉर्मल प्लान बनाया, स्केच बनाया कि मैंने ये लिखना है, ठीक है? हाँ जी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? हाँ जी, बॉयज़ एंड गर्ल्स प्लीज. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, so now you can look at the first strategy that is related to brainstorming, listing. Listing में क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ. You are going to arrange a function in the university, any specific function. तो आप क्या करते हैं? आप ऐसा तो नहीं है बस ठीक है जी, Rome is going to be built in a day. No, आप पहले प्लान करते हैं कि आपने टेंट सर्विस वाले को बुलाना है, आपने जो है वो कैटरिंग वाले को बुलाना है, आपने बैंड बाजे वाले को बुलाना है, आपने जनाब फलाने को बुलाना है, मतलब क्या क्या अरेंजमेंट करनी है, वो सारी चीज़ें आप लिखते हैं, लिस्ट बनाते हैं. उसके बाद फिर एक तरतीब से उस सारे काम को आप परसू करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आपको ज़रूरत है, बैंड बाजे वाला कहाँ पे ज़रूरत है, टेंट सर्विस की कहाँ पे ज़रूरत है, कैटरिंग की कहाँ पे ज़रूरत है और किस टाइम पे ज़रूरत है. उन सारी चीज़ों को फिर एक तरतीब से आप जो है ना वो उसको अपने प्लान को आप एग्जीक्यूट करते हैं. लिस्टिंग इज़ हेल्पफुल इन दिस सेंस कि व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट pursuing for any plan, you straight away write down your points, you list down your points like this, as the one that you can see at the screen, how to be a successful language learner. तो इसी तरह आप भी यहाँ पे यही काम करते हैं कि आप उसको इस तरह लिखते हैं और लिखने के बाद अपने पॉइंट्स को नोट करने के बाद आप परसू करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो एक तरतीब होती है. अब इसमें ये नहीं है कि दैट यू आर गोइंग टू राइट एनीथिंग स्ट्रेट अवे. नो, प्लीज़ मेक अ लिस्ट, मेक द आइडियाज़ वेयर यू आर गोइंग, ठीक है? मुँह उठा के लिख नहीं देना, बल्कि पहले सोचना है कि मैं क्या लिखूं और क्या छोड़ूं, ठीक है? ओके, सो देन आफ्टर दैट वंस यू हैव लिस्टेड, ठीक है, फिर आप आउटलाइन की जानिब बढ़ेंगे. सो वी कैन सी another strategy that is related to clustering. ये भी brainstorming है. brainstorming क्या है कि there is a storm of ideas in your brain and you have to put that storm on the paper, and for that purpose whether you have to list, whether you have to adopt another strategy that is related to free writing, ठीक है? आप पेपर में फ्री राइटिंग करके आते हैं, ज़्यादातर इस तरह होता है कि ब्रेनस्टॉर्म की आइडियाज़ को फ्री राइट करके आ गए. बट हियर वी आर जस्ट गोइंग टू प्रैक्टिस इट कि आपने मेन आइडियाज़ उठाएं. मेन आइडिया एक था, फॉर एग्जांपल, if I give you a task to write an essay on women's rights in Islam, so that is the main idea, and we are going to have some connected ideas related to it, number of rights that you are going to discuss. You can add each right in this connected idea, and then you have to discuss, then you have to make body paragraphs in each idea, ठीक है? बॉडी पैराग्राफ बनते हैं, उस हिसाब से आपकी बातें, आपके जो आइडियाज़ हैं, बिगर आइडिया देन स्मॉलर आइडिया देन इवन स्मॉलर आइडिया, ठीक है? सो इसमें बाज़ा बैड आइडियाज़ भी होते हैं कि जब आप देख रहे होते हैं कि यार ये चीज़ तो मैंने लिखी, इसकी ज़रूरत नहीं थी. मोस्ट ऑफ द टाइम if you don't pass through this writing process, if you don't practice it, ultimately what happens that when you sit in exam, you write the things straight away. सोचे समझे बगैर आप लिख के आ जाते हैं, जो आता है जहन में लिख के आते हैं और जिधर आता है वहीं पे लिखते हैं, ठीक है? यानी आंसर लिखते हुए ज़्यादातर आपने ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की that whatever you wrote it straight away. You have never planned your thoughts. You have never ever planned your thoughts, never ever planned your ideas. So after knowing about this writing process, I expect you people to plan your ideas and write down the same way. मुझे ये बताएंगे कि इससे पहले ये डिस्कस तो नहीं किया हुआ आपने क्लास में, पिछली उसमें सेमेस्टर में राइटिंग प्रोसेस पढ़ा तो नहीं था? No, sir. Okay. No, sir. ऐसा कुछ भी नहीं No, पढ़ा. sir. Okay. Okay, Fatima, I'm going to ask you a question. Fatima is here or not? Yes, sir. Fatima, I'm going to ask you a question. If I ask you to write an essay on, for example, if you ask you to write an essay on women's rights in Islam, okay, just so what will be your connected ideas? Can you give me some clues about it?
आपकी सर हाँ बोलिए 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 फातिमा बोलिए आई एम लिसनिंग टू यू सर सर मतलब कि आप को मैं स्टेप्स बताऊं कि हम नहीं पहले नहीं क्या करेंगे या नहीं फिर no 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 there is one main idea women's rights in Islam and now you are going to talk about it so तीन कनेक्टेड आइडियाज कौन कौन से होंगे women's राइट्स पे कोई से तीन बताएं फिर मैं बताता हूँ आपको एक्सप्लेन करूँगा उसके बाद ना आई बी एक्सप्लेनिंग दिस थिंग टू यू okay actually I ask questions in order to know that whether I am going to convey my thoughts or not अब इस पे भी गौर कीजिएगा मेन आइडिया आपके सामने क्या है women's rights in Islam that will be added in this circle यहाँ पे लिखें women के कौन कौन से that is the main idea it means that will be your introductory paragraph women's rights in Islam और इस पे आप लिखेंगे जनरल women के ये rights हैं इस्लाम ने ये rights दिए हैं ठीक है उसके ऊपर आप सेंटेंस बना गए women के ये rights हैं सबसे पहले women rights की बात करें women rights को पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है और मुख्तलिफ मज़ाहिब के साथ साथ अपार्ट फ्राम अदर रिलीजन्स इस्लाम ने भी कुछ दिए एंड सम ऑफ देम आर लाइक अब सम ऑफ देम के बाद कनेक्टेड आइडियाज़ कौन से हो गए द वन इज़ राइट टू वोट राइट टू गेट एजुकेशन राइट टू गेट इनहेरिटेंस राइट टू गेट द मैरिज ऑफ आवर चॉइस ठीक है सो दीज आर द कनेक्टेड आइडियाज़ ये सारे के सारे इस वुमेन राइट के साथ जुड़े हुए हैं ठीक है सो with that connected ideas now you are going to make paragraph for each connected idea आपने सिर्फ पॉइंट नोट करने चाह ये अपने मेन पॉइंट बना दिए इसके साथ अब यहाँ पे आप लिखेंगे जो इससे रिलेटेड बात होगी फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक्ड अबाउट women राइट फॉर एजुकेशन अपने बात की एजुकेशन से रिलेटेड पॉइंट यहाँ पे लिखें इनहेरिटेंस की बात की तो यहाँ इनहेरिटेंस से रिलेटेड लिखें इधर आपने वोट की बात की वोट के यहाँ पे लिखें सो जिस चीज़ पे आपने बात की उसके साथ वहाँ पे वो वाले लिखेंगे कि अगर बिकॉज यू आर गोइंग टू सब्सटेंशिएट योर आर्गूमेंट ठीक है उसको आर्गू करने के लिए जब आप व्हेन आई से women's राइट्स इन इस्लाम डेफिनेटली यू हैव टू रेफर फ्रॉम होली कुरान एंड हदीस टू रेफर टू सपोर्ट योर आइडियाज़ ठीक है अभी समझ आ गई या नहीं आई यस सर आगे ओके सो हसीब इज हियर और नॉट Malaika, she is not here. Manur, not here. Omar, Yes, sir. Omar. हसीब बोला Sir, है? Haseeb. हसीब हाँ आप अभी यहाँ जी, जी, बताएं अभी just tell me about it. Repeat the what I told you, main idea and then connected ideas. जो मैंने अभी बताया, please kindly repeat it. सर आपने बताया मेन आइडिया से फिर रिलेट करते हैं Yes, you have to relate it with main idea. तो कौन से होंगे connected ideas कौन से होंगे women rights के? कनेक्टेड आइडिया सर जो बिग आइडिया होता है फिर से स्मॉलर कौन से होंगे इसके अंदर कौन से होंगे women's rights के अंदर सर वुमेन राइट्स के अंदर होंगे उनकी एजुकेशन होगी उनसे रिलेटेड और जो राइट्स उन्हें नहीं मिलते वो होंगे okay now let's talk about the next thing so you can look at this slide that drinking is dealt as the main idea then the writer is talking about teenage drinking and driving alcoholism legal drinking age social drinking and made to seem glamorous and sexy so एक देखें एक आइडिया ये सारी चीज़ें all these ideas are connected with drinking कि drinking में क्या फ़ायदा क्या है नुकसानात क्या हैं किधर जाते हैं ठीक है so let's go to the next thing once you have brainstormed your ideas now you are going to plan and organize ठीक है आपने ब्रेनस्टॉर्म कर लिए आइडियाज़ अब आपका असल सीन अभी शुरू होगा दैट इज़ व्हाट ब्रेनस्टॉर्मिंग कि ब्रेनस्टॉर्मिंग आप शुरू करेंगे सॉरी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आप करेंगे सर ब्रेनस्टॉर्मिंग तो पहले हो चुकी है हाँ हो चुकी ना ब्रेनस्टॉर्मिंग हो चुकी आपने क्लस्टरिंग भी की आपने लिस्टिंग भी की दिस इज़
आप What? ऑर्गेनाइज करेंगे। हाँ क्लस्टर. Now we are going to organize. Ideas आपके पास आ गए. You have got ideas with you, and when you are going to write anything, मैंने जैसे बताया कि this is basically a beginning stage. As you are going to learn writing skills, as you are going to acquire that how you have to write, ठीक है. So जिस तरह वो एक खिलाड़ी होता है ना, तो वो डायरेक्टली Yes, sir. उसको मैदान में नहीं उतारा जाता, प्रैक्टिस होती है. He is recruited in a club. There he gets training, physical training, and then training related to playing that particular game. And he passes through certain stages of net practice. But in the match, what he does, he directly applies all the techniques that he has learned. So in the writing process, you will learn that how you have to write. You will learn the etiquettes of writing, that how you have to control your thoughts. As I told you at the beginning, that when you are going to write anything, basically what is that? That is ideas and thoughts and ideas that you are going to write. ठीक है, ऐसा ही है ना. जब आप thoughts and ideas को जब आप लिख रहे हैं, तो ultimately जब आप थॉट्स एंड आइडियाज़ को जब आप लिख रहे हैं, तो लिखने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको ब्रेनस्टॉर्म करें, उसके ऊपर सोचें कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना, ठीक है, और किस तरह लिखना है. ठीक है, समझ आ गई बात. जैसे मैंने आपको बताया. सो लुक एट हियर, वंस यू हैव ब्रेनस्टॉर्म योर आइडियाज़, वंस यू हैव पास थ्रू प्री राइटिंग स्टेज, सो नाउ यू विल बी हैविंग अ रफ प्लान. ठीक है, नाउ यू आर गोइंग टू मेक अ रफ प्लान. ठीक है, रफ प्लान जब आपके पास होगा तो जो आपकी एक्चुअल राइटिंग होगी दैट विल बिकम मच ईजियर. एग्ज़ाम में भी आपने यही स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है. एग्ज़ाम में जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है, पहले आप सोचें आपने क्या लिखना, आप अपने पॉइंट्स लिखें, उसके बाद उन पॉइंट्स के ऊपर आप अपनी आउटलाइन ड्रा करें. डायरेक्टली आप आउटलाइन पे चले जाएं, डायरेक्टली सवाल के जवाब पे चले जाएं. जैसे मैं अभी आपको बता भी देता हूँ, आपने आइडियाज़ ऑर्गेनाइज किए. ओके, सो व्हेन यू आर गोइंग टू प्लान द रफ ड्राफ्ट, पहला ड्राफ्ट जब आप बनाएंगे एसे राइटिंग में, चूँकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, दो चीज़ें अपने जहन में रखनी है. फर्स्ट थिंग इज़ दैट दिस क्लास इज़ meant to help you in practice writing. ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर not only in the exam related to English 3 or English 2, you have to apply the strategies that you have acquired during these classes that you have to apply in other academic subjects. ठीक है, बाकियों में भी आपने अप्लाई करना है, इस्लामियात में अप्लाई करें या पाक स्टडीज़ में अप्लाई करें, जो सोशल साइंसेज के जितने भी सब्जेक्ट हैं सब पे अप्लाई करें. ठीक है, और नॉट ओनली हेयर, यू कैन अप्लाई इट इन CSS ऑल्सो. ओके, so when you are going to make an outline, so what you have to do, you have to organize ideas, you have to write a thesis statement, and then you have to write an outline. ठीक है, अपने आइडियाज़ को आप ऑर्गेनाइज करेंगे, क्या लिखना है. सवाल का जवाब, सवाल क्या था, क्वेश्चन क्या था, विमेंस राइट्स इन इस्लाम. प्लीज़ माइंड इट, मेरी बातों को गौर से सुनना है, बिकॉज यू विल बी हैविंग वन असाइनमेंट आफ्टर दिस क्लास. इसके ऊपर एक असाइनमेंट आपकी होगी जिस पे आपने उसी तरतीब से जवाब लिखने हैं. आउटलाइन क्या है, that you are going to write women's rights in Islam. It means your question is what are the rights given by Islam to women. ठीक है, उसके ऊपर जो thesis statement बनेगी, thesis statement is basically a super condensed answer of the question. You have to develop that thesis statement in the introductory paragraph. You have to write that these are the rights given to women by Islam. ठीक है, तो उसी तरह आप उसको लिखें. अब क्या करना है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में, फर्स्ट हम इसको देखेंगे आइडियाज़ को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखनी है और आउटलाइन कैसे बनानी है. सो लुक एट दीज थिंग्स, वील बी लर्निंग दीज थिंग्स, राइटिंग अ थीसिस स्टेटमेंट, मेकिंग एन आउटलाइन इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स ऑफ द क्लास. ठीक है, आगे जाकर इनको डिस्कस किया जाएगा. बट बिफोर दैट, एज टुडे वील बी जस्ट टॉकिंग अबाउट राइटिंग प्रोसेस, इसी पे आपने सिर्फ देखना, फोकस रखना है. ठीक है, बाकी थीसिस स्टेटमेंट लिखनी और आउटलाइन बनानी मैं आपको अलग से उसके ऊपर लेसन्स लेक्चर्स उसके ऊपर दूंगा. ओके, सो देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़. ठीक है, आपको आइडियाज़ मिले. अब आप जी बोलिए. ये वुमेन राइट्स वाला जो टॉपिक है, इसमें थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनेगी? विमेंस राइट्स के ऊपर थीसिस स्टेटमेंट ये है कि सवाल, पहले आप इसको जो टॉपिक है उसको आप क्वेश्चन में कन्वर्ट करें कि इस्लाम ने औरत को कौन कौन से हकूक़ दिए हैं. बेसिकली ये टॉपिक से क्वेश्चन आ गया. अब इस सवाल का आप जवाब दें एक जुमले में.
इस्लाम ने औरत को वरासत का हक़ दिया, औरत को अपनी मर्ज़ी की शादी का हक़ दिया और उसे आला तालीम हासिल करने का हक़ दिया। हमने सिर्फ 3 राइट्स पे बात की और फिर इन्हीं हकूक़ को, अब ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट है, यानी कि शॉर्ट जवाब है इसका। अब आगे अगले जो आपके बॉडी पैराग्राफ्स होंगे वहाँ पे एक राइट पे आप बात करेंगे, यू विल बी टॉकिंग अबाउट जस्ट वन राइट, और फिर आपने कहेंगे कि इस्लाम ने औरत को वरासत का हक़ दिया है। ये बात आपने कर दी। इस्लाम ने कहाँ पे दिया है? कुरान में, हदीस में। यू हैव टू सब्सटेंशिएट योर विद सपोर्टिंग सेंटेंसेस। टॉपिक सेंटेंस के साथ सपोर्टिंग सेंटेंसेस होंगे जो इस आइडिया को सपोर्ट करेंगे कि जब भी आप टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं उसके लिए आप फिर आगे आर्गूमेंट बिल्ड करते हैं कि ये बात मेरी क्यों ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ क्यों ठीक है, कुरान ने कहा या हदीस ने कहा। ठीक है, आप समझ आ गई बच्चे? सर एक्सप्लेन एक को ही करेंगे, एक पॉइंट को या सारों को? एक पैराग्राफ में एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, नॉट मोर देन वन। मतलब सारों को एक साथ नहीं करना, थोड़ा सा नहीं, हर एक पैराग्राफ में एक पॉइंट चलेगा, एक से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं डिस्कस होंगे। देखें, व्हेन यू आर गोइंग टू राइट सर जी सर आपको मतलब ये है ना कि जब हम थीसिस स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हम 3-4 चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे एक ही लाइन में थीसिस स्टेटमेंट में, और जब हम ऐसे लिखेंगे तो जो हमने थीसिस स्टेटमेंट में 2-3 पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं एक लाइन में, तो उनको एक एक पैराग्राफ में फिर एक्सप्लेन करेंगे। उनको उस थीसिस स्टेटमेंट से एक आइडिया निकालेंगे, एक पैराग्राफ में लिखेंगे, दूसरा आइडिया निकालेंगे, दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे, तीसरा आइडिया निकालेंगे, तीसरे पैराग्राफ में लिखेंगे। जैसे मैंने कहा कि इस्लाम ने औरत को ये हकूक़ दिए। पहला हक, पहला बॉडी पैराग्राफ, दूसरा हक, दूसरा बॉडी पैराग्राफ, थर्ड राइट, थर्ड बॉडी पैराग्राफ। ठीक है, अब समझ आ गई बात? यस यस सर। सर। Okay. So you can organize your ideas in chronological order when you are writing an essay. You can organize it in spatial order, means physical characteristics or appearance. You can write your ideas in the order of importance. जी बोलिए। सर जब हम ये लिखेंगे तो हम अपने हर पैराग्राफ या हर जो पॉइंट होगा उसको प्रूव करने के लिए हम सिर्फ कुरान और हदीस से ही रेफरेंस दे सकेंगे। देखें, जब when we are talking about women's rights in Islam, तो women right इस्लाम का ताल्लुक कुरान और हदीस के साथ ही आप वहीं से देंगे, आप कहीं और से नहीं बता सकते ना, क्योंकि आपने अपनी बात को साबित करना है। ठीक है, जब आप अपना स्टैंड अगर मैं ये कहूँ ना women's rights in पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के हिसाब से आप आइन के अंदर देखेंगे women को क्या राइट्स मिले हैं। जब आप इस्लाम की बात करें तो फिर कुरान और हदीस ही हमारे पास हवाला होता है। तारीख़ के अंदर तो अक्सर अगर आप तारीख़ से हवाला देंगे या सोसाइटी से हवाले देंगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारी सोसाइटी में इस्लाम के मुताबिक अडॉप्ट नहीं की जाती, सो दैट विल बी चैलेंज। ठीक है, फिर वो उसको आपने जब इस्लाम की बात की तो इस्लाम का ताल्लुक, इस्लाम तो सबके लिए है, तमाम ममालिक के लिए है, तमाम दुनिया के इंसानों के लिए है। ठीक है, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा कैनवस ज़रूर बड़ा होता है, लेकिन आपने डोमेन अपनी स्पेसिफिक रखनी है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको इसी बात को लेके अगर हम चलें, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉजेज़ ऑफ करप्शन, फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट कॉजेज़ ऑफ करप्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट करप्शन एंड इट्स कॉजेज़ इन पाकिस्तान, फिर आप कोई आर्गूमेंट अगर देते हैं तो फिर आप उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स लेके आएंगे कि पाकिस्तान में तालीमी अदारों में करप्शन बढ़ चुके हैं। ब्रिंग द स्टैटिस्टिक्स वो वाले नहीं रहने हैं। मैं एकेडमिक राइटिंग में आगे आपको बताऊंगा कि वेबसाइट्स के, न्यूज़पेपर्स के स्टैटिस्टिक्स नहीं चलेंगे, रिसर्च के स्टैटिस्टिक्स सबूत लेके आएंगे आप कि आपने यही बात तालीमी इदारों में करप्शन रेफरेंस के साथ, हवाले के साथ, बग़ैर रेफरेंस के आपने कोई बात नहीं करनी। ठीक है, okay, so when you are going to organize your ideas, you need to look for these pieces of advices that look at the question you answered when you were developing your working thesis. ठीक है, look at the question, जो सवाल आपको पूछा गया है। सवाल क्या था? सवाल ये था women's rights in Islam, so you have to convert into a question that what are the rights given by Islam to women। ठीक है, उसके हिसाब से आप, अच्छा फिर उसी पे आप चलेंगे। देखें, जब आपने थीसिस स्टेटमेंट को फोकस करके लिखा है ना, योर आंसर विल बी एब्सोल्यूट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि आपने एक फोकस रखा था, एक ही पॉइंट को आपने सामने रखा। हमारे अक्सर इस तरह होता है, व्हेन वी राइट द आंसर्स इन एग्ज़ाम वी फेस सच टाइप ऑफ ट्रबल्स दैट वी स्टार्ट राइटिंग स्ट्रेट अवे। जहाँ जो आइडिया आता है
एट द वेरी बिगनिंग मैंने क्या कहा कि आप अपने थॉट्स और आइडियाज़ को रीडेबल फॉर्म में लेके आएंगे, थॉट्स एंड आइडियाज़। ठीक है, राइटिंग प्रोसेस में क्या करना है, थॉट्स एंड आइडियाज़। सो व्हेन दे आर थॉट्स एंड आइडियाज़, सो लुक फॉर दैट कि वो थॉट्स और आइडियाज़ अपनी जगह पे जाएं, आप इधर उधर उनको ना लिखें। एक थॉट या एक आइडिया, एक पैराग्राफ, नॉट मोर देन वन पैराग्राफ। ठीक है, और जब आप इस तरह लिखेंगे ना, आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त आपने लिखा है। मैं आई बी गिविंग यू वन नॉन ग्रेडेड असाइनमेंट जिसमें आप ये कैसे लिखेंगे इसके ऊपर ना, किसी भी टॉपिक पे। फिर मैं आपके साथ एक शेयर भी करूँगा, आप खुद देख के अंदाज़ा लगा लें, यू विल फाइंड द डिफरेंस। ओके, जस्ट डू इट। इसको इस तरह कर लेते हैं कि आप सारे लोग इस पे ना, इस वीकेंड पे, दैट विल बी नॉन ग्रेडेड असाइनमेंट टू असेस योर प्रोग्रेस, टू असेस योर सेल्फ। खुद को असेस करने के लिए आपने लिखना है। ठीक है, आपने एक तो इसी वुमेन्स राइट्स इन इस्लाम के ऊपर आपने लिखना है खुद को असेस करने के लिए। उसके बाद मैं आप लोगों से एक शेयर करूँगा। ठीक है, सो वो भी एक स्टूडेंट का अटैम्प्ट होगी, फिर मुझे बताना है डिफरेंस, आपको खुद पता चल जाएगा। ओके, सो व्हेन यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़, यू हैव टू लुक फॉर द इम्पॉर्टेंट आइटम्स एंड लेस इम्पॉर्टेंट। तो उसके हिसाब से आप चीज़ों को लेके चलेंगे। ठीक है, look for the word limit also. So after looking at the important and unimportant items, you have to make an outline and decide how will you set up your paper and how you are going to organize the paper to achieve your objective, मकासद achieve करने के लिए। लेकिन once again I'm repeating this thing, please mind it that you are not writing for sake of writing. Always when you write for sake of reading. So your ideas should be coherent, your ideas should be connected with the main idea, and if they are not connected, ultimately they will create communication gaps. ठीक है, okay, so after having done with it, now you are going to draft. ठीक है, आपने आउटलाइन बनाई, आपने स्केच बनाया कि ये मेरे पास स्केच है। नाउ यू आर गोइंग टू ड्राफ्ट मीन्स आपने पॉइंट्स लिखे थे, ड्राफ्ट किया, अब वो उन्हीं पॉइंट्स को नाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट दैम इनटू सेंटेंसेस। इसके लिए कुछ चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। ड्राफ्ट इज़ अ ड्राफ्ट इज़ नॉट द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ड्राफ्ट तो ड्राफ्ट होता है ना। मैंने जैसे बात की, प्लेयर आता है, उसको सिखाई जाती है, उसको जनाब जिम भी, फिज़िकल ट्रेनिंग भी दी जाती है, उसको खेलना भी सिखाया जाता है, प्रैक्टिस करवाई जाती है। उसके बाद उनका प्रैक्टिस मैच होता है। सो ड्राफ्ट इज़ लाइक दैट प्रैक्टिस मैच। एंड वहाँ पे आप इन चीज़ों पे परेशान नहीं होते कि परफेक्ट हो, बल्कि आप ये देखते हैं कि कहाँ पे गलतियाँ होंगी। बाद में वीडियो में देख के बताया जाता है, देखो यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे की है, यहाँ पे की है, यहाँ पे की है। सेम इज़ द केस है। अब देखिए, मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान में क्रिकेट की बात कर लेते हैं। क्रिकेट के जो डोमेस्टिक मैचेस होते हैं, जो PSL के मैचेस होते हैं, वहाँ जो खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं, वो परफॉर्मेंस और इंटरनेशनल लेवल पे जो परफॉर्मेंस है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। PSL लेवल पे वो ड्राफ्ट तक, वहाँ तक वो ड्राफ्टिंग पे चल रहे होते हैं, और जो इंटरनेशनल मैच होता है वहाँ वो फाइनल ड्राफ्ट होता है, ओरिजिनल प्रोडक्ट होती है। बड़े बड़े खिलाड़ी PSL में मार दाड़ करते हैं, वहाँ जाके फेल हो जाते हैं। वो फाइनल ड्राफ्ट होता है जहाँ कुछ नहीं चल पड़ता, या कुछ ऐसे होते हैं जो फाइनल ड्राफ्ट में असल चीज़ में, असल प्रोडक्ट में जाके काम करते हैं। सो सेम इज़ द केस है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप ड्राफ्टिंग करेंगे, देन प्लीज़ डोंट वरी अबाउट writing the perfect. Develop and support ideas listed in the outline. You have to be careful of this one. This second point, second bullet, ठीक है, in green. Develop and support the ideas listed in the outline. When you are going to develop and support the ideas, definitely आपके जो वो बात है ना कि राइटिंग प्रोसेस में क्या रीडेबल फॉर्म में थॉट्स एंड आइडियाज़ को आप लेके जा रहे हैं। सो अल्टीमेटली दिस ऑब्जेक्टिव विल बी अचीव्ड। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू डेवलप एंड सपोर्ट द आइडियाज़. Don't focus on spelling and grammar as it can be checked later in the writing process. जब पहला ड्राफ्ट आप लिखेंगे, फर्स्ट अटैम्प्ट जब आप वुमेन्स राइट्स इन इस्लाम पिक करेंगे, तो आप आइडियाज़ को डेवलप करें। सिर्फ जो आइडियाज़ आपके पास थे, जो मैंने भी आपको बताया तरीक़ेकार, उसको अडॉप्ट करते हुए, एंड आफ्टर दैट यू विल कम टू नो कि यार यहाँ पे दिस इज़ द डिफरेंस. ओके, there are 5 strategies that you can adopt while drafting that begin writing with the part you know the most. कि जब आप ड्राफ्ट लिख रहे हैं, जिस चीज़ का आपको ज़्यादा अच्छी तरह पता है, उसको सबसे पहले शुरू करें. Write one paragraph at one time and then stop. Take breaks and refresh your mind.
be objective, be reasonable in your goals, and keep your audience and purpose in mind as you write. वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसके लिए लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, किस लिए लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं. अगर आपको इसका इल्म नहीं होगा तो फिर बहुत रोले होंगे. अगर आप ड्राफ्ट के अंदर ही आप ग्रामर को ज़्यादा फोकस करें, स्पेलिंग पे बैठे रहें, तो असल बात तो साइड पे हो जाएगी. जो मेन पर्पस है, मेन जो थिंग है, दैट विल बी एट द अदर साइड. ठीक है. सो बेहतर है कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखें. प्लीज़ माइक ऑफ कर दें अपना ना. ओके. सो व्हेन यू आर गोइंग टू ड्राफ्ट, यू हैव टू लुक फॉर दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स. जब आपने ड्राफ्ट बनाया तो क्या करना है, आपने कैसे अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया, हाउ यू हैव डेवलप योर थीसिस स्टेटमेंट, हाउ यू हैव कंस्ट्रक्टेड टॉपिक सेंटेंसेस ऑफ योर बॉडी पैराग्राफ्स, and how you have substantiated topic sentences through supporting sentences, and how you have concluded your discussion. Mind it that introductory paragraph is what the introduction of the discussion, and concluding paragraph is the closing of the discussion. इंट्रोडक्शन होता है इस तरह कि आप नज़र आ रहा है ये डिस्कशन ओपन हो रही है, और कंक्लूजन में क्या होता है, वही डिस्कशन क्लोज हो रही होती है. ओके. Then comes revising and editing. Once you have written it, once you are done with it, now you are going to revise and find the problems with the content. एक दफ़ा आपने ड्राफ्ट लिखा, अब आप देखेंगे क्या आइडियाज़ ठीक हैं कि नहीं ठीक. ठीक है. रिवाइज, पहले आपने रिवाइज किया, रिवीजन में आप देखेंगे क्या आइडिया क्या था. आइडिया वॉज रिलेटेड टू women's rights in Islam. Are you talking about women's rights only, or you are talking about anything else? Or your topic sentences are substantiating your thesis statement, or your supporting sentences are related to topic sentences. So look at these things. So ultimately जब आप उसके अंदर राइटिंग के अंदर आइडियाज़ को चेंज करेंगे, वो मज़ीद कन्विंसिंग हो जाएगा, मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. सो व्हेन यू आर रिवाइजिंग, लुक एट द बिग पिक्चर. ठीक है. बिग पिक्चर एलिमेंट ये है. बिग पिक्चर एलिमेंट क्या है, मैंने शुरू में बताया. राइटिंग क्या है, thoughts and ideas in readable form. Readable form is your grammar, your spellings, and thoughts and ideas is related to big picture कि आप उसमें वही thought और वही ideas लगाएंगे which are related to women's rights in Islam. If you are not talking about that, it means you are far, far away from that. So if your big picture is not clear, ultimately your narrow picture, despite being correct, narrow picture will never be supporting your big picture. ठीक है. कि आपकी ग्रामर ठीक, आपकी स्पेलिंग ठीक, लेकिन जो आपने लिखा वो ठीक नहीं है, तो दैट इज़ वर्थलेस. ओके. सो देन देयर आर सम रिवाइजिंग स्ट्रैटेजीज दैट यू आर गोइंग टू अडॉप्ट, यू आर गोइंग टू लुक एट. ठीक है. रिवाइज जब करेंगे तो यू फर्स्ट यू हैव टू लुक एट द यूनिटी. यूनिटी क्या है, दैट यू हैव रिटन द टॉपिक सेंटेंस. ठीक है. फर्स्ट यू हैव टू लुक एट योर थीसिस स्टेटमेंट, जो कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में होगी. लुक एट दैट, और फिर उसको देखें तो क्या थीसिस स्टेटमेंट टॉपिक सेंटेंस के साथ चल रही है, और टॉपिक सेंटेंस सपोर्टिंग सेंटेंस के साथ. मीन्स यू हैव टू लुक एट ईच बॉडी पैराग्राफ, लुक एट देयर सपोर्टिंग सेंटेंसेस. क्या वो टॉपिक सेंटेंस को ही सपोर्ट कर रहे हैं, और टॉपिक सेंटेंस क्या वो थीसिस स्टेटमेंट के पेट से ही जन्म ले रहा है या कुछ और चीज़ है. थीसिस स्टेटमेंट माँ है जिसके पेट से टॉपिक सेंटेंसेस निकलते हैं और निकलने चाहिए. If they don't come out of the womb of a thesis statement, ultimately they are not the kids of that particular essay. And definitely when you are talking about thesis statement, that is a super condensed answer of the question. ये काम आपने, you are not only to adopt this strategy in English 3, rather you are going to adopt it in all the academic subjects. बार बार इस बात को रिपीट करूँगा ताकि आपके दिमाग में पेवस्त हो जाए. Then first thing is that unity, that you have looked at unity, that all these things are referring to main point. Main point is thesis statement, topic sentence, and then supporting sentences. Then detail and support means that the examples that you have provided, they are basically supporting the topic sentences जो आपने लिखा. If you talked about one women rights in one paragraph related to inheritance, तो जो आपने एग्जांपल दी, जो आपने रेफरेंस दिया, क्या वो उसी से रिलेटेड है या कुछ और है. सो एट लास्ट कोहेरेंस, ऑल पॉइंट्स कनेक्टिंग टू फॉर्म अ होल. सारे मिलके एक होल किस तरह बनाएंगे.
सोचिए अभी थोड़ी देर के लिए, मुझे बता सकता है कोई बंदा लास्ट पॉइंट? मैंने वैसे इनडायरेक्टली बता भी दिया इसके अंदर दैट ऑल पॉइंट्स आर गोइंग टू मेक। सारे टॉपिक जी बोले। तो सर सारे पॉइंट उससे रिलेट करें हमारे थीसिस टॉपिक से और रिलेट उसी करते बेस हैं। हाँ देखें जब आपने लिखा when wrote about that particular topic, so now you have to look that in body paragraph, in each body paragraph, everything is related to, every supporting sentence is related to topic sentence, and every topic sentence comes out of the womb of thesis statement, and thesis statement is actually the super condensed answer of the question. So ultimately you have achieved your objectives. It means that every point of view is coherent, ठीक है, जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे फिर देन यू हैव टू वेरी द स्ट्रक्चर्स। कोहेरेंस में फिर आप वो लगाते हैं जो लेक्सिकल डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, कनेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, देयरफॉर, सिमिलरली, आफ्टर दैट, तो वो भी ठीक हों, ठीक है। जैसे पैराग्राफ राइटिंग के अंदर मैंने बताए भी थे, एक मैंने आपको वो शेयर भी किया था, एक MS वर्ड का पेज, उसके अंदर वो सारी चीज़ें अडॉप्ट की हुई हैं। ओके, सो वंस यू आर डन विद योर ड्राफ्ट, ठीक है, आपने रिवाइज के बाद नाउ यू आर गोइंग टू एडिट, ठीक है। सो एडिटिंग में क्या करना है? यू हैव टू लुक फॉर ग्रामर, स्टाइल, वर्ड चॉइस एंड यूजेस, पंक्चुएशन। यू हैव टू लुक एट द लिटिल पिक्चर। आपने लिख दिया, आइडियाज़ ठीक हो गए, आइडियाज़ को देखा, दे आर करेक्ट, दे आर इन रीडेबल फॉर्म, ठीक है, रीडेबल फॉर्म में आ गए, राइटिंग प्रोसेस हैज़ बीन कंप्लीटेड। लेकिन नाउ यू हैव सॉरी, आइडियाज़ ठीक हो गए हैं, मीन्स यू आर कम्युनिकेटिंग करेक्टली। नाउ दे शुड बी इन रीडेबल फॉर्म, यू हैव टू लुक फॉर ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशंस, ठीक है। बाद में लास्ट पे इन चीज़ों को देखना है, ग्रामर ठीक है आपकी, स्पेलिंग्स, पंक्चुएशंस में मसला तो कोई नहीं है। हाँ जी, डिड यू गेट माई पॉइंट? आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम, Yes, sir. आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम होम। हाँ जी, कौन बताएगा इसके बारे में? व्हाट इज एडिटिंग? ईमान, ईमान इज हियर। फिजा, Fiza is here or not? Ali, Ayan Haider, सर लास्ट में जो फाइनल टच देते हैं जिसमें सारी स्पेलिंग्स और वो नोट करते हैं, ग्रामर सारी ठीक है। so you can take it like a building, ठीक है। बिल्डिंग जब बनती है ना, Yes. तो आखिर में जो उसको वो चूने के बाद जो उसको फाइनल टच दिया जाता है, सफाई की जाती है। चूना आपका रिवाइजिंग है कि आपने रिवाइज़ किया, आपने देखा कहीं पे कोई मसला तो नहीं रह गया, हर चीज़ बराबर की बिल्डिंग की। देन एडिटिंग में क्या, आपने सफाइयाँ करनी है, कहीं से बुरी ना लगे, फ़र्श साफ़ किया, दीवारों के अंदर एक्स्ट्रा कहीं पे पेंट लगा हुआ, हर चीज़ सीधी की, ठीक है। सो इसमें एडिटिंग सर फॉन्ट की होगा, टेक्स्ट होगा, फॉन्ट। yes, you can see at the slide that you have to look for these things, these four things especially, that are your capital letters correct, have you used your punctuation correctly, are using verbs, pronouns and modifiers correctly, do you check every possible misspelling in a dictionary. So when you are going to write your essay, please listen this lecture again and again when you are going to write, the whether you have adopted it or not, ठीक है। यहीं पे पता चल जाता है, टेस्टिंग हो जाती है। when you write an essay, when you write anything, so ultimately that will become an answer कि आपने लेक्चर सुना कि नहीं सुना, आपने चीज़ों को समझा कि नहीं समझा। then comes the final draft, the last step in your that you are going to do, आपने बना लिया, सारा कुछ कर लिया। now there are 4 guidelines that you have to follow. You have to follow your outline, जो अपना आउटलाइन बनाई थी उसी के हिसाब से चलेंगे। बी केयरफुल ऑफ द मिस्टेक्स एंड राइट अकॉर्डिंग टू द पर्पस। बी श्योर दैट योर एसे इज़ कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट्स, ठीक है, मुकम्मल होना चाहिए। यस सर। हाँ, इसमें कोई Okay, sir. कोई ऐसी बात ना, इनकम्प्लीट बातें आपने नहीं करनी। सो व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, इफ आई से दैट इट इज़ कंप्लीट इन ऑल सर रेस्पेक्ट्स, आपका माइक म्यूट हो गया। कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट्स इन द सेंस कि यू हैव टू सी कि कोई बात ऐसी तो नहीं जो आपने बतानी थी आपने छोड़ दी, या कोई बात ऐसी जो आप बताना चाहते थे नहीं बता सके, या नहीं बतानी थी तो लिख दी। सो दोनों केसेस में
यानी कि आपके ऐसे में कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसको निकाला जा सकता हो, और ना ही ऐसा लगे कि इसमें जगह है, स्पेस मौजूद है इसमें, तो ये भी लिखना था। जो पैराग्राफ आपने लिखा वो कंप्लीट मीन्स कि उसमें जो आपने आर्गूमेंट दिए वो पूरे दिए। 5 मरले का मकान है तो 5 मरले की जगह में ही बनाना है आपने उसके लिए 10 मरले नहीं लगाने। वी आर आस्क्ड टू राइट द एसे इन 350 वर्ड्स, so mind it that it must be in 350 words. It should not be more than 350 किसी भी सूरत में। So there are एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर जो 350 वर्ड्स का मतलब 350 वर्ड्स अब देखें सर, मतलब ये है कि इससे ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं हो सकता। ऊपर कम हो सकता है 320 to 350, ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है सर। 350 और सर दूसरा बात 350 जी doesn't सर, mean 700 words। या ओके सर। और सर दूसरा इसमें ये कि सर जब हम इसको कंक्लूड करने की तरफ जाते हैं किसी भी टॉपिक को, तो उस पे जब हम मतलब आपने जितने भी हम ऊपर पॉइंट डिस्कस कर चुके होते हैं या हेडिंग्स हम डिस्कस कर चुके होते हैं, तो कंक्लूजन में उनको डिस्कस करना जरूरी होता है। नहीं, बेसिकली देखें, आप इस चीज़ पे गौर कीजिएगा। व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर डिस्कशन, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, बेसिकली यू आर गोइंग टू ओपन द डिस्कशन, ठीक है। व्हेन यू आर गोइंग टू कंक्लूड द पैराग्राफ, देन यू आर गोइंग टू क्लोज द डिस्कशन। आपने डिस्कस नहीं करना, आपने क्लोज करनी है बातें, दरवाजे बंद करने हैं। मैं आपको ये बेसिक सारी बताऊंगा पैराग्राफ ऐसे राइटिंग की सारी ना, व्हेन वील बी डन विद इट ना, सो आई एम श्योर कि यू विल बी वेरी मच क्लियर अबाउट इट, सो डोंट वरी, परेशान नहीं हो, ठीक है। तो Excuse me, अब sir. मैं आपको कंक्लूडिंग पैराग्राफ तक मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। हाँ बोलिए। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सर आपने हम लोगों को बताया कि जब हम ऐसे लिखते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, फिर थीसिस स्टेटमेंट, फिर टॉपिक सेंटेंस। अब ये 3 पैराग्राफ्स हमारे अलग-अलग नो होंगे नो या नो फिर बेटा, हमने ना जो ना थीसिस ना, स्टेटमेंट है वो इंट्रोडक्शन में करनी? that is related to the outline, that introduction, thesis statement, then topic sentence for each paragraph, then conclusion, so that is basically related to outline, ठीक है। जब आप ड्राफ्ट बनाते हैं तब ये काम करते हैं। when you are going to write the essay, your introductory paragraph must have a thesis statement, your body paragraph must be having the topic sentence followed by supporting sentences, and you must have a concluding paragraph, ठीक है। ये तरीक़ेकार चलेगा। सो जब आप ये essay राइटिंग की सारी स्ट्रैटेजीज कंप्लीट कर लेंगे ना, आई एम क्वाइट श्योर कि फिर ये चीज़ें, ये क्वेश्चंस आपके पास नहीं रहेंगे, ठीक है। एंड आई एम क्वाइट ग्लैड दैट यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, इट मीन्स दैट यू पीपल आर अवेक, यू आर नॉट स्लीपिंग। सो जो आप इतना ज़्यादा परेशान थे ना, सो आई एम श्योर कि आपको एक अंदाज़ा भी हो चुका होगा दैट्स हाउ मच यू आर गोइंग टू लर्न इंशाल्लाह ड्यूरिंग द सेशन, ठीक है। तो प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह सीखेंगे भी। अच्छा, सो व्हेन यू आर गोइंग टू राइट, सो प्लीज़ राइट इन क्लियर प्लेन स्टाइल। मीन्स के एक्सेप्शन ज़रूर है, आप कॉमन जो जैर्गन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं उस स्पेसिफिक फील्ड का, लेकिन फिर भी आपका स्टाइल बिल्कुल क्लियर हो। मीन्स जो आप लिख रहे हैं वो चीज़ें वाज़ेह हों, एक्टिव वॉइसेस को आप इस्तेमाल करें, क्लियर डायरेक्ट सेंटेंसेस इस्तेमाल करें। यू कैन वेरी योर सेंटेंस स्ट्रक्चर बट यू कैन नॉट वेरी योर टेंस वेरी नहीं करना। सेंटेंस स्ट्रक्चर मीन्स कभी जेरेंड से स्टार्ट करें, कभी इन्फिनेटिव से स्टार्ट करें, कभी कोई नाउन फ्रेज से, कभी क्लॉजेस से स्टार्ट करें। सो यू कैन वेरी इट, एंड टेंसेज मस्ट बी कंसिस्टेंट। अगर पास्ट टेंस है, हिस्ट्री पेपर में इस्तेमाल हो रहा है, और एक्सपेरिमेंट्स जो पास्ट में होते हैं उनमें जैसे पास्ट टेंस इस्तेमाल होता है। एक्सेप्शन ज़रूर हो सकती है कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, जब आप कुछ लिख रहे हैं तो तारीख़ की बात करें, कोई कहानी सुना तो पास्ट में आप वो इस्तेमाल करते हैं, बट दैट डजेंट मीन कि एक ही पैराग्राफ में आप कभी प्रेजेंट, कभी पास्ट, कभी फ्यूचर वो झूला झूल रहे हैं, ये काम नहीं करना। Then there are some things that we don't have to do, that I would recommend you to not to use first person pronouns. Please mind it that you will never use first person pronouns. Your one assignment will be related to writing an essay, और आप ही में से कुछ जवान आएंगे और वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। सो व्हेन दे विल डू दीज डोंट्स, ठीक है, ये डोंट्स पर जब वो करेंगे तो डेफिनेटली दे आर बाउंड टू लूज मार्क्स। समझ आ गई सीआर? इस बात को गौर कीजिएगा इस पे। डोंट यूज Sir, your voice is not clear. जी क्या कह रहे हैं? ओके सर। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है।
अच्छा, डोंट यूज़ कॉन्ट्रैक्शंस मीन्स कॉन्ट्रैक्शंस मिसाल के तौर पे आई वॉन्ट, आई कांट, आई कुडेंट, आई शुडेंट, ये इस तरह के कॉन्ट्रैक्शंस नहीं इस्तेमाल करें। लेकिन ये याद रखना कैन नॉट जो है ना एक ही वर्ड है, अलॉट दो वर्ड्स हैं। पुरानी टर्म्स, डोंट यूज़ आर्केक टर्म्स, डोंट यूज़ स्लैंग वर्ड्स, डोंट यूज़ क्लेशेस, डोंट यूज़ क्वालिफायर्स। ठीक है, लुक एट फॉर एग्जांपल, look at the qualifier हज़रत, मौलाना, अल्लामा, आजी, नमाजी, कारी, चिश्ती, रिजवी, कादरी, नजफ़ी, हनफी, बरेलवी, देवबंदी, चिश्ती, पता नहीं क्या क्या, दरमियान में छोटा सा नाम है। शिया सुन्नी नहीं, वो शिया सुन्नी नहीं लिखा जाता, लेकिन ये चीज़ें लिखी जाती हैं ना। वैन देयर इज़ अ तारुफ, फॉर एग्जांपल CR का उसका तारुफ हम करते हैं हाफिज़ साहब का, तो इस तरह लिखा हो जी इश्तिहार पे, हज़रत, मौलाना, अल्लामा, कारी, काजी, हाफिज़, मोहम्मद, ज़ुबैर, अहमद, चिश्ती, हनफी, बरेलवी। सर ब्रेक, सर जी ब्रेक अच्छा, काफ़ी हो गए हैं। बहुत लंबा हो गया सर। दीज आर द क्वालिफायर्स। ठीक है, यानी कि आप भी नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। देखो CR, ये मैं बता रहा हूँ, ये एक हकीकत है। आप जब मौलवियों के इश्तिहारात देखते हैं, यू कैन सी दीज थिंग्स, सो प्लीज़ डोंट यूज़ क्वालिफायर्स। मैं चल एक और क्वालिफायर आपको बताता हूँ। I was reading a paper written, a question attempted by a student, and he wrote the answer of a reference to context in a poetry. ठीक है, उसने इस तरह लिखा कि these thought provoking beautiful lines are written by a well renowned Victorian English poet William Shakespeare। ठीक है, अब इसमें इतना भी कहा जा सकता था कि दीज लाइन्स आर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, लेकिन उसने जितनी वो थीज, थॉट प्रोवोकिंग, ब्यूटीफुल लाइन्स, ये सारे क्वालिफायर्स हैं। थॉट प्रोवोकिंग और ब्यूटीफुल, ये सब कुछ क्या है, क्वालिफायर्स हैं। दीज इट सेल्फ इज़ अ क्वालिफायर, सो इतना दैट इज़ इनफ। दीज लाइन्स आर टेकन फ्राम द पोएम फलानी रिटन बाय फलाना। ठीक है, सो डोंट यूज़ क्वालिफायर्स। ये लंबे चौड़े दुम छले ना लगाएं, नहीं तो हाफिज़ साहब, जैसे हाफिज़ साहब कह रहे हैं ना कि इतने दुम छले लगाए हैं, वो पंजाबी में कहते हैं फूक मार दी है, कुछ ज़्यादा हो गया है, वो कहते हैं ना कुछ ज़्यादा हो गया है। मीठा तेज़ लग रहा था ना अफजल, बहुत ज्यादा। तो इसी तरह मतलब सर मीठा, बस हाँ मीठा तेज़ नहीं ज्यादा लगा। लंबी क्या? ज्यादा लंबी तमहीद नहीं बांधनी, आप Yes. सिंपली ये कहना चाह रहे हैं। यस, तमहीद नहीं बांधनी। So now we are going to recap. Who wants to discuss this slide? Anybody who is willing now, it's your time, and it's time for questions. We have got 15 minutes for your questions, and after that we'll be having 15 minutes break, and then we'll be talking about next topic. Laiba is here. यस सर। Laiba, please थोड़ा सा आप ये प्री राइटिंग पे बात करें। सर प्री राइटिंग में हम लोगों ने क्लस्टर्स के बारे में पढ़ा था। सर प्री राइटिंग ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग्स के बारे में पढ़ा कि हम लोग कहीं से डिफरेंट मतलब कोई भी टॉपिक है, ठीक है, उसको पहले हम लोग कहीं से लिसन करते हैं या फिर रीड आउट करते हैं, ठीक है, और फिर उसके ऊपर हम लोग आउटलाइन बनाते हैं, उसके में आइडियाज़ वगैरह लेते हैं, मेन आइडियाज सेलेक्ट करते हैं, और फिर उसके लिए Okay, someone has muted you, I think. कोई मस्ती कर गया जी इधर भी? सर ये पता नहीं हम लोगों को कौन अनम्यूट कर लेता है, फिर कभी म्यूट करता है, कभी अनम्यूट करता है। चलें, कैरी ऑन प्लीज। CR देखा करें बीच में, जब म्यूटिंग अनम्यूटिंग हो बता दिया करें। अच्छा, ओके सर। Okay, let's talk about the next point. You have talked about pre-writing. So Sharjeel Ijaz, are you here? जी सर। Okay, please talk about the next element, ideas. So you can see the slide. Ideas कहाँ से लाने हैं आपने? From where you have to bring the ideas and what you have to do? देखें जी यहाँ सर, पे, जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो जो डिफरेंट आइडियाज एक्सप्लोर होते हैं टॉपिक्स रिलेटेड। जी सर। हाँ प्लीज कैरी ऑन। क्या और किस तरह आप, what are the sources of ideas? If you are going to get the ideas, कहाँ से लाते हैं आप? Sources. सर सोर्सेज सर मेन तो ब्रेनस्टॉर्मिंग ही होती है ना, खुद से सोचते हैं उस बारे में सर, तहकीक करते हैं, मे बी यू आर स्टडीइंग सम बुक और थ्रू इंटरनेट,
या फिर जो डिफरेंट चीजें आपने पढ़ी हैं, जितना भी आपके पास नॉलेज होता है, आपको उसको एक पेपर के ऊपर फिर लिखते हैं, एक लिस्ट Yes. बनाते हैं उसकी पूरी। Yes, that's good. And you have to participate in classroom discussion, group discussion and activities. From there you come to know about the ideas. As right now we are getting the ideas about different points. ठीक है, आप उस टॉपिक पे बात करते हैं ना. Then comes outlining, organizing ideas. Next heading है हमारी उमर, please talk about it. Organizing ideas. When you're going to organize ideas, what you have to look for and how you will have to organize. Umar is not here, I think. Zarmeen is Yes, not. sir. हाँ बताएं जी, इस पे organizing ideas पे बात करेंगे. सर ऑर्गेनाइजिंग आइडिया के जो हमने सोचा है, मतलब हमने अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग की है कि हमने ये जो टॉपिक है उसके Yes, Zarmeen बोलिए, शाबाश बोलिए. म्यूट तो नहीं कर दिया किसी ने? कि हमारा जो है वो सर वो जो आइडिया है उसको ऑर्गेनाइज करना है कि उसका मेन पर्पस क्या है उसके. Okay, मुनज़्ज़ा प्लीज. आप बोलिए मुनज़्ज़ा. आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग हम लोग ऑर्गेनाइजिंग आइडिया के अंदर आउटलाइन बनाते हैं उन वर्ड्स की जो कि उस पैराग्राफ के अंदर हम लिखना चाहते हैं. लाइक ऐसे वर्ड्स जो कि उस पैराग्राफ में एग्जिस्ट करते हैं, कर सकते हैं, यानी ऐसी लाइंस बनाना. उसका एक नोट कार्ड बनाएंगे हम जिसके अंदर हमारे डिफरेंट वर्ड्स लिखे होंगे. उसके बाद हम फिर अपने आइडिया को कंपोज करेंगे थ्रू दोज वर्ड्स जो कि हमने लिखे होंगे, आउटलाइन बनाई होगी. So it means that while organizing your ideas, you have to look for the purpose of writing. You have to look at the audience who is going to read, and you have to build a logic. ठीक है, while outlining and mapping, you have to build the logic. अब उसके बाद writing start होती है. जी बोलिए. सर क्वेश्चन नहीं करते जो आपने कहा, क्वेश्चन करते हैं देन उसका आंसर करते हैं, जो डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे उनको फिर एलाबोरेट करते हैं. देखिए क्वेश्चन ये है ना, आइडिया ऑर्गेनाइज करने के लिए आप खुद से क्वेश्चन करते हैं. जैसे मैंने आप बताया कि द टॉपिक इज़ वुमेन्स राइट्स इन इस्लाम. अब ये आपको एग्जाम में भी इसी तरह दिए जाते हैं टॉपिक, घुमा फिरा के वो बात यही होती है. जैसे मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दूँ, मैं आपको अभी टॉपिक दूंगा कि व्हाट इज़ राइटिंग एंड व्हाट आर द स्टेप्स इन राइटिंग प्रोसेस. तो ये बेसिकली क्या है, क्वेश्चन है, बट दैट इज़ मेंट टू बी रिटन इन द एसे राइटिंग फॉर्मेट. एसे के फॉर्मेट में लिखा जाए तो अल्टीमेटली वही चीज़ बनेगी. ठीक है ना, वही चीज़ बनती है ना. हाँ, तो इसमें ये होता है कि यू हैव टू लुक फॉर द आइडियाज़, देन यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग. नाउ आई नीड समबडी टू राइट टू टॉक अबाउट कंपोजिंग आइडियाज़, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन थिंग. आप लोगों ने आज ये करना है कि हर आदमी अपना जो आपके ईमेल एड्रेस पे जो आपका नाम शो हो रहा है ना, वो बिल्कुल एग्जैक्ट नाम आपने शो करना है. नाम आपका बिल्कुल एग्जैक्ट मुकम्मल नाम शो हो. ठीक है, ताकि चूँकि मैं फ्लिपग्रिड से ही आपके नाम देख रहा हूँ, उसमें पूरी लिस्ट मेरे पास सामने है. एज आई एम अनएबल टू स्विच फ्रॉम द स्क्रीन बिकॉज आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग स्क्रीन फ्रॉम अनदर रिकॉर्डर. ठीक है, तो क्लासरूम की जो ये रिकॉर्डिंग ये गूगल क्लासरूम में आई मेक श्योर दैट इट इज़ अवेलेबल ओवर देयर. तो वहाँ जब होगी तो फिर हमारे लिए एक बड़ा अच्छा ये बन जाता है ना. ठीक है. सो अरीब खान, now it's your time to answer the question. Areeb Khan didn't upload the video also. ठीक है, इसमें बहुत से लोगों ने अभी तक अपनी वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो भी अपलोड नहीं की. आमना, उसके बाद सभी, अवैस, मुनीब, निमरा, एमन, अरीब खान, मालिक. सर जी सर आमना और सभी का जो वीडियो है वो तो मेरे पास नहीं आई, लेकिन इनका ना पैराग्राफ मेरे पास आया है जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इन दो का अपलोड नहीं हो रहा. एक्चुअली मसला नहीं, वहाँ पे अपलोड हो चुका होगा ये. जी बोलिए. आपने मेरी 004 से मैंने वीडियो अपलोड कर दी है. आप 003 की बात कर रहे हैं? ये दूसरी आमना है, आपकी नहीं है, आपका नहीं है. मैंने दूसरा आमना बोला है, इसीलिए मैंने कहा ना कि आप पूरा नाम जब लिखेंगे तो पता चलेगा. आमना ए है, ये आमना ए. ठीक है. हाँ, तो पूरा नाम लिखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. एनीवेज, अरीब खान प्लीज़, नाउ इट्स योर टाइम टू टॉक कंपोजिंग आइडियाज़.
ठीक है, जो आपको ये सर्कल नज़र आ रहा है इस पे बताइए जी। अरीब खान है? ओके, मलिक साहब, मलिक के उमर, Yes, sir. उमर प्लीज टेल मी। What हाँ जी बोलिए उमर। इस बारे में? You have to talk about these composing ideas, that how we have to compose the ideas. Sir. So, composing ideas can be differentiated into two parts. One is the structuring of the essay and paragraphs that are supposed to be written, and the other can be the other part can consist of it does consist of the development of the essay and how we are supposed to write it. What sort of vocabulary what sort of vocabulary we should use, the kind of linguistics that are Okay, supposed to be okay, well that done. very- Well done, Umair. Well done, Shamash. So when you are going to write, when you're going to compose your ideas, you have to look for the introduction, that what you are going to write. Then you have to look for the body of the essay, means body paragraphs. ठीक है, introduction एक paragraph. Mind it, when you will write, whenever you will write any answer, any long answer, short answer will be in the form of paragraph, and when there will be long answer, then it should be in essay form. And in essay form there must be one introductory paragraph, one concluding paragraph, and body paragraphs can vary. Body paragraphs may be 2, 3, 4, depends upon the number of ideas that you are discussing in your thesis statement. ठीक है, thesis statement में जितने आपने लिखे उस हिसाब से आपके body paragraphs बढ़ेंगे. As I'm going to give you an assignment, what is writing and what are the steps involved in writing process. So definitely there are different steps. So number of steps, then number of paragraphs. ठीक है. So then we have to look at word choices, sentence development and paragraph development, that how you are going to develop topic, sentence and supporting sentences. And after that there is a rewriting stage, that once you are done with your draft, now you are going to rewrite it. Means you are going to look at the clarity, unity and coherence. So Shadab Khan, please tell me about this rewriting. You can look at the screen here, and there we can see that what is rewriting. बताया भी हुआ है. Shadab Khan बोलिए. सर उसमें हम क्लैरिटी, यूनिटी एंड कोहेरेंस के चेक करते हैं कि अगर जो हमारी जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो सेंटेंसेस हैं उनमें यूनिटी है, अगर यूनिटी ना हो तो फिर दे सीम डिसऑर्गेनाइज्ड, और we have to suggest or we have to discuss with our peers about it, the ideas that we used. So the best way, yes, the best way to do is that you can what you have written, you can show it to your friend and ask him to read. जब वो पढ़ेगा ना उसको पता या तुम्हें समझ आई है, तुमने पढ़ा मैंने क्या लिखा है. सो साथ वाला जब देखेगा पता चल जाएगा. उसको समझ नहीं है तो इट मीन्स आपने जो है ना वो टाइम ज़ाया किया. Worthless activity. So what you have to do, you have to write for reader, साथ वाला भी आपको बता देगा क्या मसला है, एक दूसरे का आप देखेंगे. ठीक है. So then comes editing and proofing. हाफिज साहब, CR प्लीज आप बताइए इस पे. Yes sir. In the last editing and proofing means we read each and every word, we including a punctuation or a single word or spacing, check the spacing in a document slowly and carefully while looking for errors. It means focusing on the surface of our text that we write in essay, not on the content. मीन्स के अगर हम प्रूफिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, इसका मतलब ये है कि अब हम सारे उस स्टेप से, स्टेजेस से गुजर आए हैं जो हमने एक ऐसे के लिए जो हमें ज़रूरत थी. तो अब उसके बाद हमने उसको चेक करना है कि क्या जो चीज़ हम कन्वे करना चाह रहे थे, मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे,
वो हो गया है, या उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, या उसमें कोई स्पेसिंग का इशू आ रहा है, या फिर उसमें जो बात मतलब सम टाइम ऐसा होता है कि इंसान जल्दी में ना एक तो स्पेलिंग मिस्टेक कर बैठता है, या सम टाइम स्पेस देना भूल जाता है। स्पेसिंग का बड़ा रोल होता है ऐसे राइटिंग में। मतलब ये होगा कि दो लफ्ज आपस में स्पेस नहीं है, तो उन दो लफ्ज को मिला के जब रीडर पढ़ेगा तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो इट्स मीन के एडिटिंग एंड प्रूफिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ऐसे राइटिंग में। Okay, okay, yes, well done, good. So that's all for the first half. And if you have any question related to writing process, I'm available for you. And we are left with 4 minutes. So still, if you have any question related to writing process, you can ask me. कुछ भी ऐसी चीज़ जो समझ ना आई हो. So here you can look at the screen that I'm not using words to ask questions, rather I'm using non-verbal signals हैं. देखें ना, मैंने भी written form के साथ अभी non-verbal signal भी इस्तेमाल किए. So बताएं जी. किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ जो समझ ना आई हो. ये ऐसे सर ऐसे ही हमने बिफोर नेक्स्ट क्लास हमने सबमिट करवाना है. Yes, you have to submit that essay before the next class, and I'll be uploading that particular format. Please आप इनको बताएं कि जो फॉर्मेट गूगल क्लासरूम में पढ़ा होगा उसी को कॉपी करके उसी पे आपने लिखना है. फालतू चीज़ें आप ना करें, कुछ भी ना लिखें, ठीक है. सो दैट विल सर बी ये स्लाइड्स भी ओपन कर अपलोड कर दीजिएगा. हाँ, गूगल क्लासरूम में अपलोडेड होगा सब कुछ, हर चीज़ आएगी वहाँ पे. अब यहाँ पे क्या करना है आप सर, आपने बताइए क्या करना ये दैट विल बी एन असाइनमेंट एंड दैट विल बी अपलोडेड इन गूगल क्लासरूम. आप पढ़ेंगे, आप उसको करेंगे, उसके बाद हम क्लास में मैं आपको शेयर करूँगा एक अटेम्प्टेड ना. देन यू हैव टू मैच योर्स विद दैट वन. ठीक है, ठीक है ना. नहीं सर, जो हमने असाइनमेंट जो भी सबमिट करानी है वो हमने वर्ड पे ही करनी है, जो आप क्लासरूम में वहाँ MS वर्ड पे करके आपने गूगल क्लासरूम में अपलोड करनी है. ओके सर, ओके सर, ओके सर. हाँ जी, एनी मोर क्वेश्चन. सर ऑर्गेनाइजिंग आइडिया को एक दफ़ा फिर से ज़रा एक्सप्लेन कर दें. आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करने का तरीक़ाकार ये है कि आप ये देखेंगे कौन सी बात आपने कहाँ लिखनी है, तरतीब में लेके आना है कि आइडियाज़ में कौन सी बात कहाँ पे लिखनी है. सो यू कैन लुक हियर एट दिस लेवल. लेट मी लुक एट दैट कि आपने एक तो ये चीज़ देखना है कि जो सवाल था, क्वेश्चन क्या था, what is writing and what are the steps involved in writing process. So आइडियाज़ कौन से, राइटिंग को डिफ़ाइन करें, राइटिंग प्रोसेस के बारे में को बताएं, राइटिंग प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं उनके बारे में. सो लुक एट दैट वन कि किस तरह उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि एक ही ऑर्डर में सारी बातें हों, प्री राइटिंग देन ये इसी तरीके से बातें की जाएँ. लाइक दिस कि वी आर गोइंग टू राइट, तो आपने आइडियाज़ को इसी तरह ऑर्गेनाइज करना है. ये है ऑर्गेनाइजेशन कि पहले प्री राइटिंग स्टेज की बात करेंगे, फिर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग की, फिर ड्राफ्टिंग की, फिर रिवाइजिंग एडिटिंग की, एंड देन देयर विल बी फाइनल ड्राफ्ट. ठीक है, इस तरतीब से आप चलेंगे. ये नहीं कि पहले प्री राइटिंग कहा, फिर फाइनल ड्राफ्ट की बात की, बाद में इसकी बात की, फिर कहीं. नो, यू हैव टू गो इन दिस ऑर्डर. ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज की एक तरतीब पे आपने चलना है. हाँ जी, ये वो लेक्चर रिकॉर्डेड भी गूगल क्लासरूम में अवेलेबल होगा एंड यू विल हैव एन एक्सेस टू इट. तो वहाँ से भी आप इसको एक दफ़ा दोबारा भी सुन सकते हैं. ठीक है, ओके सर. सर ये आपने स्लाइड सारी खुद बनाई हुई है? जी मैंने खुद बनाई है जी. अच्छा, आप बोलें किसी का क्वेश्चन आया नहीं? सर ये जो हमने ऐसे करना है, ये पैराग्राफ की फॉर्म में करना है या हेडिंग्स की? नहीं, ऐसे ये ऐसे पैराग्राफ की फॉर्म में होगा. नो हेडिंग्स इन द ऐसे, याद रखिए, हेडिंग्स नहीं लिखनी. और मैं आपके क्वेश्चन जो है ना इसके बाद अगली क्लास में लूँगा. आप अपने पॉइंट्स नोट करके रखिए. वील बी आंसरिंग द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास. अभी 1:45 हो गए. 1:45 के बाद हम अगली क्लास जो है ना लेंगे इंशाल्लाह. आई विल बी ऑनलाइन एट 2 PM एंड वील बी डिस्कसिंग द थिंग्स. ठीक है जी. सर अटेंडेंस लगा लेने इस क्लास मैं लगाता हूँ, बेफिक्र रहें. अभी अपने निकलना नहीं, मैं लगाने लगा अटेंडेंस.